بھارت کی آبی جارحیت امتحان بن گئی، دریاؤں میں مزید پانی چھوڑ دیا، دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، پانی کے دباؤ میں مسلسل اضافہ، ملتان ایک بار پھر خطرے کی زد میں، شیرشاہ بند پر پانی کرٹیکل گیج سے تجاوز کر گیا، شیرشاہ بند پر کرٹیکل گیج 393.30 ہے، پانی 393.50 کی حد کو چھو گیا، شیرشاہ بند کو توڑنے کا فیصلہ، ہیوی مشینری پہنچا دی گئی، شیرشاہ پل کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، ممکنہ متاثرہ علاقوں میں انخلاء کے اعلانات، انتظامیہ نے بھی علاقہ مکینوں کو فوری انخلاء کی ہدایت کر دی، ادھر ہیڈ محمد والا پر بھی پانی کا گیج 413.60 کی سطح تک پہنچ گیا، دوسرا بڑا سیلابی ریلا رنگپور کی حدود میں داخل، ترنڈا محمد پناہ میں دریائے چناب کی تباہ کاریاں، ہر طرف پانی ہی پانی، فصلیں تباہ ہو گئیں، جنوبی پنجاب میں سیلابی صورتحال کے باعث راستے بند، دوسری جانب دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے، بھارت کی پاکستان کو ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر ممکنہ ہائی فلڈ کی اطلاع، محکمہ انڈس واٹرز نے ہائی فلڈ وارننگ جاری کرتے ہوئے صوبائی اور ضلعی حکام کو الرٹ کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، گنڈا سنگھ والا اور سلیمانکی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ایمپریس برج پر پانی کی سطح بلند ہو کر 12.8 فٹ ہو گئی، دریا چناب میں ہیڈ مرالہ خان کی ہیڈ ورکس کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریا سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح تیزی سے بلند ہونے لگی، گڈو بیراج پر پانی کی آمد 4,34,000 کیوسک ریکارڈ، دریا چناب میں ہیڈ تریموں پر پانی کے بہاؤ میں کمی، ہیڈ پنجنت پر پانی کا بہاؤ 3,96,000 کیوسک ریکارڈ، دریا راوی میں ہیڈ سدنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ بھارت کی طرف سے دریا ستلج میں مزید پانی چھوڑے جانے کی اطلاع، دریا میں انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال تیسرے ہفتے میں بھی جاری، گنڈا سنگھ پر پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک ریکارڈ، ستلج میں میلسی سائفن کے مقام پر سیلابی صورتحال درمیانے سے اونچے درجے میں داخل، ریلوے ایمپریس برج پر گیج 12.8 فٹ پر پہنچ گئی، سیلابی ریلا 1,18,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ بیورو چیف رضا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات بیورو چیف رضا ملک سے جانیں گے۔ جی سر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل اگر ستلج کی بات کر رہے ہیں تو ستلج میں جو سیلابی ریلا ہے وہ گنڈا سنگھ والے کے مقام سے شروع ہوتا ہے، اور اب یہ جو ایکسیپشنلی ہائی فلڈ کی صورتحال ہے، انتہائی اونچے درجے کی جو سیلابی صورتحال ہے، وہ ہیڈ گنڈا سنگھ پر تیسرے ہفتے میں جو داخل ہو رہی ہے، اور اب جو ہے بھارت کی طرف سے مزید پانی چھوڑے جانے کی جو اطلاع ہے وہ باقاعدہ طور پر فراہم کر دی گئی ہے ستلج دریا کے حوالے سے۔ اور بات کریں ہم بہاولپور کی، تو بہاولپور بنیادی طور پر شروع ہوتا ہے ہیڈ اسلام سے، جہاں پر اس وقت جو ہے وہ اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے، 1,25,000 کیوسک کا جو پانی کا ریلا وہاں موجود ہے، جبکہ میلسی پر بھی جو اس وقت میلسی سائفن ہے وہاں پر بھی جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہوئی ہے، اور وہاں بھی جو ریلا ہے سیلابی ریلا وہ 1,22,000 کیوسک سے بڑھ گیا ہے، جس کے بعد یہ پانی ڈاؤن سٹریم پہ پہنچتا ہے ایمپریس برج پر، اور ایمپریس برج پر جو پانی کی سطح ہے وہ مسلسل بلند ہو کر 12.8 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ اگر اس کا تقابلی جائزہ اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ 2023 میں جو فلڈ آیا تھا، تو اس فلڈ میں جب یہاں سے 1,20,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزرا تھا، تو اس وقت جو پانی کی گیج ہے وہ 11.6 فٹ پر میکسیمم گئی تھی، لیکن اب جو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو سیلابی ریلا ہے اس کی جو یہاں آج جو سطح بلند سطح جو نوٹ کی گئی ہے وہ 12.8 فٹ تک پہنچ گئی ہے، درجنوں آبادیاں اور سینکڑوں بستیاں جو ہیں وہ بری طرح سے زیر آب ہیں، اس وقت 1,18,000 کیوسک کا جو سیلابی ریلا ہے وہ ایمپریس برج سے گزر رہا ہے، اور جو اس سیلابی پانی کی تباہ کاری ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں جو باہر اور سڑکوں پر بیٹھے ہیں، بند پر بیٹھے ہیں، پرائیویٹ جگہوں پر بیٹھے ہیں، جبکہ جو فلڈ کیمپس ریلیف کیمپس بنائے گئے تھے ان میں بھی جو ہے وہ موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں مویشیوں کا بھی انخلاء کو جو ہے وہ یقینی بنایا گیا تھا، باہر نکلے تھے، لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی جو سب سے وسط سیٹ ہے دریا ستلج کی، تو وہ نظر آتی ہے جب دھوڑ کوٹ سے جو جلال پور پیر والا سے اگلا علاقہ ہے ہیڈ پنجنت کی طرف، تو وہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام گھر جو ہے وہ کئی فٹ تک پانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ تحصیل احمد پور شرکیہ کا علاقہ اچ شریف میں یہ تمام علاقے آتے ہیں، اور وہاں لوگوں کے مسائل جو ہیں بے پناہ ہیں۔ اسی طریقے سے بات کریں فتو والے کی، باقر والا کی، سمرسٹا کی، جلال آباد کی، شیرو والا کی،
बस्ती बलोचा की, तो यहाँ जो अप स्ट्रीम है वो इंतहाई मसाइल का जो है वो लोग शिकार हैं। आबादियाँ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहा है। फसलें जो हैं वो ज़ेर आब हैं और अब पानी को यहाँ जो आबादियों में दाखिल हुआ उसको भी एक हफ्ते से ज़्यादा सूरत हाल हो गई है। तो ऐसे में जो है वो मकीन जो सैलाब मुतासरीन है वो बुरी तरह से जो है वो थकना शुरू हो गए हैं, जबकि उसके साथ साथ दरिया चनाब में भी जो ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है वो हेड पंजत पर जाकर मुतासर कर रही है जिला बहावलपुर में उस शरीफ के इलाकों को। तो वहाँ पर भी लोगों के मसाइल जो हैं वो भी हद तक बढ़ चुके हैं। बात करें अगर जो रिलीफ के काम जो किए जा रहे हैं तो भरपूर रिलीफ वर्क के बावजूद भी वसाइल जो है वो महदूद हैं, जबकि जो मैग्नीट्यूड है जो वालियों में सैलाब का वो बेहद ज़्यादा है और लोगों की जो तवक्कुआत है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि जो बेसर व समानी का आलम है तो उसमें जो तरजीहात हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर बदल रही हैं। कभी घर चाहिए, बारिश हो तो खैमा चाहिए, खैमा है तो खाना चाहिए, और इस सूरत हाल में जो है वो लोगों को अपने मवेशियों की भी देखभाल जो है वो करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जबकि 2 दिन बारिशों की सूरत हाल रहने के बाद आज खासा चमकदार दिन था और जो है वो तेज़ धूप जो है वो दिन भर चमकती रही। और जो हमने ऑब्जर्व किया, हम देखते रहे कि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो मवेशी हैं वो खुले आसमान तले जो है वो मौजूद हैं, उनके लिए जो है वो कोई साया भी दस्तयाब नहीं है। तो बेसर व समानी का एक आलम है जो सैलाब मुतासरीन जिससे गुजर रहे हैं, और यकीनी तौर पर जो है ये सूरत हाल जो दरिया सतलुज में सैलाब की वो तवील होती नज़र आ रही है, क्योंकि 3 हफ्तों से जो है वो गंडक सी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मुसलसल बरकरार है। और यही पानी जब वो डाउन स्ट्रीम में आता है तो हेड सुलेमान की पहुँचता है, हेड सुलेमान की से ये पानी हेड इस्लाम में ज़िला बहावलपुर की हदूद में दाखिल होता है और फिर मेसी साइबल एम्प्रेस ब्रिज से होता हुआ हेड पंजत में जाके जो है वो जम होता है। और लोग सिर्फ जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनकी तरफ से यही दुआएं की जा रही हैं कि जो सैलाबी सूरत हाल है वो कंट्रोल हो, अल्लाह पाक जो है वो रहम फरमाएं और लोगों के मसाइल जो हैं वो निस्बतन कम हो सकें। जी, लोगों के मसाइल निस्बतन कम हो सकें। ब्यूरो चीफ रजा मलिक अपडेट करने का शुक्रिया। दूसरी तरफ दरिया चनाब में सैलाब की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात हसन की जुबानी जानेंगे। जी हसन। जी, दरियाए चनाब में पानी की सतह संगीन हद तक बुलंद होती दिखाई दे रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों से तो ये चीज़ बार बार डिसाइड भी की जा चुकी थी और सुनने में भी यही आ रहा था कि अभी शेरशाह बंद पर शगाफ डाला जाएगा और जो करीबी बस्तियां थीं उनसे मुकम्मल तौर पर इनखला भी करवा लिया गया था और पीछे से पानी का रेला भी उसी रफ्तार से हेड मोहम्मद वाला साइड पर और शेरशाह बंद की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन तकरीबन 24 घंटे का वक्त गुजर गया है। 24 घंटे पहले इस चीज़ का फैसला लिया गया था कि शेरशाह बंद पर शगाफ डाला जा रहा है। फिर उसके बाद आज सुबह 8 बजे तक का वक्त लिया गया था कि रेलवे ट्रैक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद शगाफ डाला जाएगा। लेकिन अभी तक की बात करें तो इस वक्त तक अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा सका और स्टिल इंतज़ामिया की जानिब से जो मशीनरी है वो भी यहाँ पर लाई जा चुकी है और यहाँ पर लोगों को भी जो लोगों के करीबी इर्द गिर्द में जितने भी कारोबारी मराकिज़ हैं उन्हें भी मुकम्मल तौर पर बंद करवाया जा चुका है। मशीनरी भी मौजूद है, ज़िला इंतज़ामिया की पुलिस की नफरी भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी किस्म का फैसला नहीं किया जा सका कि शगाफ डालना भी है या नहीं डालना। लेकिन अगर उसके साथ साथ बात की जाए तो पीछे से हेड मोहम्मद वाला साइड पर अकबर फ्लड बंद पर भी पुश्तों पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ अगर शेरशाह बंद की बात की जाए तो शेरशाह बंद पर भी पानी की सतह में इजाफा देखने में आ रहा है और जो करीबी बस्तियां हैं, स्पेशली अगर बस्ती गागरा के साथ साथ जितनी बस्तियां हैं जिनमें मोजा हसन कचूर है, धूरकोट है, मिर्ज़ापुर है, खानपुर काजी है, हाजीपुर है, शाहपुर है, ये तमाम ऐसी बस्तियां ऐसे मवाज़ियात हैं जहां पर मुकम्मल तौर पर पानी अपनी लपेट में आ चुके हैं। लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं किया जा सका कि शेरशाह बंद को ब्रीच करना भी है या नहीं करना। पानी की सतह के हवाले से बात की जाए तो अकबर फ्लड बंद हेड मोहम्मद वाला रोड पर जो बंद है वहां पर तकरीबन वाटर गेज 414 फीट को टच कर चुके हैं और अगर बात की जाए शेरशाह बंद की तो शेरशाह बंद पर जो एक क्रिटिकल पॉइंट था उसको भी वाटर गेज टच कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक ब्रीचिंग का कोई फैसला नहीं किया जा सका और इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल कमेटी ने इस चीज़ का फैसला करना है कि किस वक्त ब्रीच करना है और उसके साथ साथ लेकिन ब्रीच बाद में भी किया जाए, उसके साथ साथ
जो करीबी जितनी भी बस्तियां उनमें मुकम्मल तौर पर इनखला करवाया जा चुका है। और ये अब ताहाल देखना बाकी है कि किस वक्त ब्रीचिंग का फैसला होता है और किस वक्त इंतजामिया शगाफ डालकर पानी को आगे मोजाजात में मुंतकिल करवाती है। मोजाजात में मुंतकिल किया जाएगा। हसन, अपडेट करने का शुक्रिया। रहीम यार खान में चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव कम हो गया। पानी का बहाव 7,81,896 क्यूसिक से कम होकर 7,42,144 क्यूसिक रिकॉर्ड। अगले 24 घंटे में चाचड़ा पर पानी मजीद कम होने का इम्कान। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। देखें, रहीम यार खान में सुबह से अब तक अगर चाचड़ा के मुकाम की बात की जाए तो यहाँ पर पानी का बहाव कम हुआ है। तकरीबन 10 घंटे में पानी का बहाव तकरीबन 44 घंटे सेंटीग्रेड यहाँ पर बहाव 44,000 क्यूसिक पानी का बहाव कम हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रहीम यार खान में चाचड़ा के मकाम पर पानी का बहाव कम हो गया। पानी का बहाव 7,42,144 क्यूसिक रिकॉर्ड। अगले 24 घंटे में चाचड़ा पर मजीद पानी कम होने का इम्कान है। तौंसा के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव 2,17,382 क्यूसिक है। दरिया चनाब में हेड पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 3,96,836 क्यूसिक है। आसिम से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। आसिम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, चाचड़ा के मुकाम पर दूसरे सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील नज़र आ रही है क्योंकि 10 घंटे में पानी का बहाव कम हुआ है और मज़ीद अगले 12 घंटों में ये भी कहा जा रहा है 24 घंटों में 1 लाख क्यूसिक तक पानी कम हो सकता है, मुतवक्के है। ये जो अभी तक जो पानी है रहीम यार खान में जो चाचड़ा के मुकाम से दरिया सिंध से गुजरा है, पांचों दरिया का यहाँ पानी से गुजर रहा है, इस वक्त 7,42,000 क्यूसिक के करीब है, जबकि सुबह के वक्त ये 7,86,000 क्यूसिक के करीब था, यानी तकरीबन 44,000 क्यूसिक जो है इस वक्त फ्लो कम है। जो सबसे ज्यादा इलाके जो मुतासर हुए हैं वो दरिया चनाब के किनारे बसने वाले तहसील लियाकतपुर के इलाके हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर मुतासर है। वहाँ पर इमदादी काम भी किए जा रहे हैं पाक फौज, रेस्क्यू 1112 और पुलिस के जवान वहाँ पर कश्तियों के जरिए जो लोग वहाँ पर सैलाबी पानी के अंदर महसूर है उनको वह इनखला किया जा रहा है, उनको महफूज मुकाम पर लाया जा रहा है। आज के दिन तक 1700 के करीब अफराद को वहाँ से इनखला किया गया है। जो नूरवाला, मोजा नूरवाला, मोजा गुल मोहम्मद, मोजा चाचड़ा, ये वो इलाके हैं जहाँ से लोगों को बाहर निकालकर महफूज मुकाम पर लाया गया है, वो कैंप पर रखा गया है। अब यह मुतवक्को की जा रही है कि चाचड़ा के मुकाम पर कल 1 लाख क्यूसिक का रेला का कम होगा, मगर जो दरिया चनाब के बसने वाले इलाके हैं जो तहसील लियाकतपुर के इलाके में आते हैं वहाँ पर पानी की जो सूरत हाल है वो बरकरार है। थोड़ा सा पानी कम ज़रूर हुआ है, मगर जैसे ही पंजनत से पानी यहाँ से आएगा तो इस इलाके में जो मुसलसल रहने वाला पानी है जो 5-5.5 लाख क्यूसिक के करीब है वो इस इलाके को मज़ीद मुतासर भी कर सकता है। ये सूरत हाल अभी तक रहेगी। अब तक जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो फिगर जारी किए गए उसके मुताबिक तकरीबन 62,000 अफराद को सैलाबी सूरत हाल पेश आने से पेशतर ही उनका इनखला कर दिया गया था, महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। जैसे इस्लामी सूरत हाल पेश आई है, अब तक तकरीबन 4700 अफराद को वहाँ से सैलाबी सूरत हाल से इलाके से निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और आज भी 1700 अफराद को निकाला गया है। मगर चाचड़ा के मुकाम पर जो ऊंचे दर्जे का सैलाब ज़रूर है, मगर सैलाबी सूरत हाल ऐसी नहीं है। यहाँ से दरिया का जो बेट है वो बहुत बड़ा है, इसकी वजह से एक किनारा रहीम यार खान, दूसरा किनारा राजनपुर का तहसील रुझान के साथ टच होती है। ये वो एरिया है जो तकरीबन 20 से 24 किलोमीटर का पार्ट रखता है, इसकी वजह से यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल कदरे बेहतर है। पानी जो है वो कहा जा रहा है कि 11 लाख क्यूसेक तक अगर पानी दरिया चाचड़ा के मुकाम से दरिया सिंध से गुजरता है तो महफूज रह जाएगा। मगर यहाँ पर सूरत हाल बेहतर है, मगर इसके साथ साथ जो लियाकत की सूरत हाल है वहाँ पर इमदादी काम किए जा रहे हैं, कैंप वहाँ पे कायम कर दिए गए। पूरे ज़िले में वैसे 21 कैंप कायम किए गए थे, मगर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इस वक्त नूरवाला के मुकाम पर खुद भी मौजूद है, इमदादी कामों की निगरानी कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुतासर इलाका है वो 4 यूनियन कौंसिल हैं जिनका ताल्लुक तहसील लियाकतपुर से। वहाँ से लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज के जवान भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, रेस्क्यू 1112 के जवान भी वहाँ पर काम कर रहे हैं और पुलिस के जवान भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ लोगों की तरफ पुलिस के जवान भी वहां पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ आप अपडेट करने का शुक्रिया। के रोड पक्का में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। टिब्बा वड्डा का हिफाजती बंद भी दरिया सतलुज की बेलहर मौजों को बर्दाश्त न कर सका।
बंद टूटने से पानी तेजी से आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। मुतादिद बस्तियां पानी की लपेट में आ गई। सैलाबी रैलों ने सब कुछ बहा डाला। किसानों के ख्वाब और उम्मीदें टूट गईं। जमीनी राब्ते खत्म। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बोट्स भी मौजूद नहीं। तफसीलात से आगाह करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। किरोड़पक्का की अगर दरियाई पट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 9 बंद बांधे गए थे, जिसमें से 6 बंद जो हैं इस वक्त के जो है वो टूट चुके हैं। इस वक्त मैं मोजा टिब्बी वडा पर मौजूद हूँ, जहाँ का जो हिफाजती बंद था वो भी टूट गया है और पानी तेज़ी से जो है वो आबादियों की जानिब बढ़ रहा है और बहुत सी आबादियाँ जो है उनको डुबो भी दिया है और लोग जो हैं वो इस पानी में फंसे हुए हैं। मैं उसी इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर पानी जो है तेज़ी से कटाव भी कर रहा है, जो इस मेट्रो रोड को जो है वो चीरता हुआ आबादी की तरफ बढ़ रहा है। मेरे साथ यहाँ के सिला मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कौन कौन से इलाके में आपके लोग फंसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये भाईजान टिब्बी वड्डा, झोक रोशन, बक्याला, कसैयां आला, खजी आला, इंदे नाल फैजाबाद, गिद्दड़ आला, तकरीबन कम अज़ कम 100 देहात सारे इलाके बुढ़े पैन। कम अज़ कम 40 तो 50 किलोमीटर की रेंज दरिया फैला खड़े। उनके बाद सारे को ही टाइम कोई महकमे का बंदा का नहीं आया, कोई कश्ती का नहीं आई। इन इलाके दे जानवर इतने फसे पैन और इनके बाद लोग इतने फसे पैन, कोई इत्थे के खाने दी कोई किसी दी पहुँच का नहीं। बिल्कुल हुकूमत नाकाम थी खड़ी है। सारे को अल्हम्दुलिल्लाह ही टाइम तक कोई का नहीं आया, ना कोई कश्ती वाला। इन साइड दर तकरीबन कोई 40-50 किलोमीटर है और इन साइड से भी 40-50 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर दे विच हैं, कोई नहीं आता पिया। हाँ जी, मेरे साथ मजीद यहाँ के सलाह मुतासरीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इंतज़ामिया अभी तक नहीं पहुँची, क्या कहना चाहेंगे? इंतज़ामिया के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि फौरी उनको आना चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग फंसे हुए हैं जिनके लिए राशन का भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। यहाँ पे जानवर हैं और रेस्क्यू की टीमें अभी तक नहीं पहुँची। लोग इस इंतज़ार में थे कि पानी कम आए, बंद बांधे हुए थे, लेकिन वो किसी वजह से वो टूटे हैं, जिस वजह से भी। लेकिन जब वो मुतासर हो रहे हैं, अभी तक इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई और कोई भी हमारे पास नहीं पहुंचा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ के सिला मुतासरीन शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि बंद जो है काफ़ी देर हो गई है इसको टूटे हुए, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया जो है यहाँ पर नहीं पहुँची, ना ही लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर कोई जो है बोट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनका कहना है कि हमारे कम अज़ कम 100 देहात जो हैं वो सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। चारों तरफ से जो है वो सैलाबी पानी है और यहाँ पर रेस्क्यू की सहूलत न होने की वजह से वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और उनको वहाँ पर खाने पीने की अशिया देने के लिए भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर जो है इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर पहुँचे और लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो सैलाब में फंसे हुए जो लोग हैं, उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन कुरैशी आपका। रोही की खबर पर एक्शन, रोही ने जगाया तो हतेजी इंतजामिया को होश आया। रोही ने बस्ती पीरन के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी के मुसलसल इजाफे के बायस सरकारी बंद टूटने की खबर नशर की, जिस पर फौरी तौर पर इंतजामिया हरकत में आ गई और बस्ती पीरन के मकाम पर बंद को मजबूत बनाने का अमल शुरू हो गया। अहले इलाका ने आवाज बनने पर रोही का शुक्रिया अदा किया। अहले इलाका ने आवाज बनने पर रोही का शुक्रिया अदा किया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रोही की खबर पर एक्शन हुआ है। रोही ने जगाया तो हथेजी इंतजामिया को होश आया। रोही ने बस्ती पीरन के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी के मुसलसल इजाफे के बाद सरकारी बंद टूटने की खबर नशर की, जिस पर फौरी तौर पर इंतजामिया हरकत में आ गई और बस्ती पीरन के मकाम पर बंद को मजबूत बनाने का अमल शुरू हो गया। अहले इलाका ने आवाज बनने पर रोही का शुक्रिया अदा किया। रोही ने जगाया तो हथेजी इंतजामिया को होश आया। इंतजामिया हरकत में आ गई, बंद को मजबूत करने का अमल जारी। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में 10 सितंबर को होने वाला मैट्रिक दूसरा सालाना इम्तिहान मुलतवी। अब यह इम्तिहान 29 सितंबर को शुरू होगा। मजीद बता रही हैं सुहिरा तारिक।
موجودہ سیلاب کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر ملتان تعلیمی بورڈ نے کل سے ہونے والے میٹرک کے جو سیکنڈ اینول امتحانات ہیں وہ ملتوی کر دیے ہیں. کل 10 سپٹمبر کو پہلا سیکنڈ اینول کا امتحان ہونا تھا، لیکن اب سیلابی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے یہ امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب نئی تاریخ کے مطابق 29 سپتمبر سے امتحان دیں گے. میٹرک سیکنڈ اینول میں 16,000 امیدواران جو ہیں انہوں نے پیپر دینا تھا. کل سے پہلا پیپر شروع ہونا تھا لیکن سیلاب کی وجہ سے پیپر کینسل کر دیے گئے ہیں. اسٹوڈنٹس کو نئی رول نمبر سلپس جو ہیں وہ جاری کی جائیں گی اور امتحانی مراکز کی تفصیلات بھی جاری کی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایسے اسٹوڈنٹس جن کو 20 سپٹمبر تک اپنی رول نمبر سلپس نہیں ملتی ہیں وہ ملتان بورڈ آفس میں جا کر اپنی رول نمبر سلپ کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ٹیم خانوال سیلاب متاثرین کی خدمت کے لیے پرعزم. ڈپٹی کمشنر سلما سلیمان تلمبا کے علاقے میں قائم ٹینٹ ولیج پہنچ گئیں. ڈپٹی کمشنر کی ٹینٹ ولیج میں مقیم خواتین سے ملاقات، خیریت دریافت کی. ڈپٹی کمشنر کا تحصیل انتظامیہ میاں چنو کو خیمہ بستی میں تمام سہولیات فراہمی کرنے کی ہدایت. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ اور اسسٹنٹ کمشنر ساجد الرزاق بھی ہمراہ تھے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹیم خانوال سیلاب متاثرین کی خدمت کے لیے پرعزم ڈیپٹی کمشنر سلما سلیمان تلمبا کے علاقہ میں قائم ٹینٹ ولیج پہنچ گئیں. ڈیپٹی کمشنر کی ٹینٹ ولیج میں مقیم خواتین سے ملاقات، خیریت دریافت کی. انتظامیہ میاں چنو کو خیمہ بستی میں تمام سہولیات فراہمی کی ہدایت. ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ، اسسٹنٹ کمشنر ساجدہ رزاق بھی ہمراہ. خیمہ بستیوں میں مقیم افراد کو امراض سے بچاؤ کے لیے صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے. ڈی سی کا ایسا کہنا تھا. تلمبا کلینک آن ویلز کی بھی موجودگی یقینی بنائی جائے، سلما سلیمان کا ایسا کہنا ہے. ڈیپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ کبیروالا میں 7 اور تلمبا میں 2 ٹینٹ ولیجز قائم کیے گئے ہیں. لودھرا انتظامیہ کا سیلابی علاقوں سے لوگوں کے ہنگامی انخلاء کا آپریشن جاری ہے. ڈیپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر نے جھوک جانن زمیندارہ بند ٹوٹنے کے بعد سیلاب متاثرہ علاقوں جاگیر ہوڑا، حیات پور اور سیدی والا کے دورے کیے. اے ڈی سی آر سید وسیم حسن، اے سی ارم شہزادی، ڈی ای او شکیل احمد بھی ہمراہ. ڈاکٹر لبنہ نذیر نے سیلابی پانی انخلاء کے عمل کا موقع پر معائنہ کیا. ڈیپٹی کمشنر کا کہنا تھا جھوک جامن بستی کا مرکزی زمیندارہ بند ٹوٹنے کے بعد صورتحال مزید تشویشناک ہو چکی ہے. ملتان کے ریلیف کیمپس میں متاثرین کئی مسائل کا شکار. خواتین کے لیے بنائے گئے پورٹیبل واش روم سہولت فراہم کرنے کے بجائے مسائل بڑھانے لگے. پانی کی عدم دستیابی نے بھی متاثرہ خواتین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. ملتان کے ریلیف کیمپس میں قائم پورٹیبل واش رومز خواتین کے لیے سہولت کی بجائے مشکل کا باعث بن گئے. متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ 2 ہفتے سے پانی دستیاب نہیں، جس کے باعث وہ نہانے سے بھی قاصر ہیں. ادھر تو کوئی سہولت بھی نہیں ہے، سب مرد مطلب اس میں جا رہے ہیں، لیڈیز کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس میں پانی نہیں ہے، مطلب بہت گندا وہ ہے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب پریشان ہیں. پہلے انہوں نے اچھا یہ وہ دکھایا کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا، سب پریشان ہیں کھانے سے بھی. خواتین کا شکوہ ہے کہ واش رومز تو قائم کر دیے گئے مگر پانی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اور بچے حفظان صحت کے مسائل سے دوچار ہیں. پانی نہ ہونے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ رہا ہے. کیمپ جو رہتا 3-4 ایک کیمپ نہ کوئی باتھ روم ہے، اصل مسیطیں میں نے سمانیہ مرد مسیطیں میں کرن یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہ سارے بات مرد جندا کوئی کہہ نہیں، وہ ٹائم کھانا ملتا پہ. مڈی ساری لڑ گئی ہے، فریج لڑ گئے، وہ بات ہے کہ دو کھلے چاکے کھایا ہے بھائی سارے کو کشا کہہ دی. سیلاب متاثرہ خواتین نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ واش رومز میں فوری طور پر پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کچھ کمی آ سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ الشبہ آصف، روہی، ملتان. ناظرین، رنگپور میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی. دوسرا بڑا سیلابی ریلا ہر چیز بہا لے گیا. بزرگ شہری آخری عمر میں سب کچھ لٹا کر بے بسی کی تصویر بنے بند پر بیٹھے ہیں. اپنی قسمہ پرسی اور بدحالی پر روتے بزرگ متاثرین مایوس دل گرفتہ ہیں کہ ان کی کسی کو پرواہ تک نہیں. رنگپور میں دریائے چناب کے سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی کے مناظر. دوسرے سیلابی ریلے سے 28 موضوعات مکمل طور پر ڈوب گئے جبکہ 50,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں. بند پر موجود 80 سالہ بزرگ نواز کی آنکھیں سیلاب کی دردناک داستان سناتے ہوئے نم ہو گئیں. بزرگ نواز کا کہنا تھا 1992 سے درجنوں سیلاب دیکھ چکا ہوں مگر اتنا خطرناک سیلاب آج تک نہیں آیا. گھر سیلاب میں ڈوب گئے، جانور بہ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں. ہر طرف خوفناک مناظر ہیں. لدیاست منجیاں کھڑیاں کر کے پھول کل ساری دیار بارش ہوئی، کئی نو فریاد کرا اللہ نو کرے نقصان ہو گئے، وائیاں بوٹ گئی.
मकान ढह गए, माल लड़ गए, कुछ सारे बंदे बैठे, काशा नहीं। अल्लाह ताला दी आस देखो, सारी मखलूक फंसी पई है, कुछ निकली पई है, कोई इमदाद का शे का ही। बुजुर्ग नवाज का मजीद कहना था कि अल्लाह के सहारे फ्लड बंद पर बैठे हैं, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। चारपाइयों पर तरपाल लगाकर बच्चों के लिए छत बना रखी है, किसी ने इनसे पूछा तक नहीं और ना ही इमदाद मिलने की कोई उम्मीद है। अभी भी लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, जो निकल आए वो भी मुश्किल से जी रहे हैं। बुजुर्ग नवाज ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि सैलाब मुतासरीन को सहूलियात फराहम करने के साथ साथ बहाली के लिए भी फौरी इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। हाईकोर्ट मुल्तान के डिवीजन बेंच ने होम सेक्रेटरी पंजाब को तौहीनी अदालत केस में नोटिस जारी कर दिया। अदालत आलिया ने पिटीशंस का नाम अप्रैल 2025 में नाम फॉर शेड्यूल से निकालने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद ना हो सका। साबिक वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर इश्तियाक रिजवाना की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने प्रोफेसर डॉक्टर शफकत की भी इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस सैयद अहसन रजा काजमी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक अपील कुनिंदगान अहल नहीं थे और उनका मौकिफ दुरुस्त साबित नहीं हुआ। हुकूमत मेरिट पर आला तालीम याफ्ता अफराद को तैनात कर रही है। पटिशन जबरदस्ती वाइस चांसलर ओहदे पर मुसल्लत रहे। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने पिटीशंस कुरुतुलैन समेत 300 अदालती अमले की इंट्राकोर्ट अपील पर समाअत की। जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस रसाल हसन सैयद पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान को प्रोसीजर के मुताबिक तकर्रियों के लिए वापस भिजवा दिया। समाअत मुकम्मल होने तक मुलाजिमीन की नौकरियां बरकरार रहेंगी।